All right, we're getting some breaking news right now. The High Court, the Allahabad High Court rather, has dismissed the petition against Mayawati, former Uttar Pradesh Chief Minister, in the Taj Corridor case. In fact, a PIL was to be heard today and now it's been dismissed. Let's go across to our correspondent Amir Haq for more details. Amir, why did the court think it was appropriate to dismiss this? Well, Maha, we only know right now that the court has dismissed the 6 PILs which were bunched together seeking reopening of the Taj Corridor case against Mayawati. The lawyers have not come out of the court. We still do not know the details. What we know right now is only that Mayawati, it's a big relief for Mayawati that the PILs have been dismissed, because otherwise, in case the court had decided otherwise, reopening of the case and prosecution of Mayawati, it would have been a big setback for Mayawati, Naseemuddin Siddiqui, her confidant, and for the BSP on the whole. Amir, take us through the twists and turns that this case has seen. Well, over the last 9 to 10 years, this was a dream project of Mayawati, which was undertaken in 2002 when she was the Chief Minister of UP. But it ran into rough times because the then NDA government did not support it. The Ministry of Environment and Forest did not allow for the completion of the project. And in fact, around the time the project was started by the UP government, even without the approval of Environment Ministry, there were allegations of corruption on Mayawati and her confidant Naseemuddin Siddiqui to the tune of around rupees 17 crore. It was supposed to be a project of 175 crores overall, but rupees 17 crores was initially released for the construction of the project. The amount was, it was alleged that it was embezzled by Mayawati, and therefore a CBI investigation took off in 2003. But in 2007 July, the then governor did not allow for the prosecution of Mayawati, and that was why the CBI investigation could not proceed any further. And from then on till now, over the last 5 to 6 years, CBI has hardly made any progress in the case. Sudhindra Bhaduria, BSP leader, now joins us for more on this latest development. Amir Haq is going to stay with us. Mr. Sudhindra, this comes as a huge relief for Mayawati. Well, I think the word relief is wrong. It is justice delayed. And, you know, from the very beginning, as far as the BSP workers are concerned, as far as we are concerned in BSP, we knew that when Mayawati ji and the nation knew they had done no wrong, and that is why it is the vindication of a clean image which is there in politics. And I can tell you one thing, this also, as far as those forces which were trying to malign the image of the BSP and its leader have been defeated. And I am quite sure in days to come people will understand the nefarious designs of those forces who were trying to malign the image of the BSP and its leader, Ben Mayawati ji. Well, sir, these PILs were, of course, filed in the High Court. Do you see more people approaching higher courts against this order now? Well, you see, that is for the law to take its own course. But as far as the, the inquiry and all the investigations were concerned by CBI, they could not find anything, and therefore it is now very clear that after the decision of the High Court, that there is nothing against Ben Mayawati ji and the Bahujan Samaj Party, and therefore I think they should now be in peace with themselves and let the leadership of the BSP work at peace and for progress. Mr. Bhadoria, also a close aide of Mayawati, Naseemuddin Siddiqui, was also embroiled in this Taj Corridor case. Is it relief for him as well, or were these cases only against Mayawati that the PILs were pushing? Well, I was told just now by your channel that it is against both. I think Ben Mayawati ji was the Chief Minister and he was a minister, and I'm quite sure if the CBI has found nothing, so therefore I think both have been, as far as this whole issue is concerned, now it is over. Do you see this as a victory for the BSP chief, and are you all going to take this to the people? Well, we do not want to
celebrated as a victory. I think justice has been given after a long time, but this also exposes all those people who were trying to malign the image, and we hope that now they will be in peace. Mr. Sudhindra Bhadoria, many thanks for speaking with Headlines today. Sudhindra Bhadoria, leader of BSP, saying that they do not see this as a victory for Mayawati, but just as justice done to her. Clearly, the cases against Mayawati, the PILs being dismissed by the Allahabad High Court. That bit of information just coming in. Amir Haq, our correspondent, is also with us. Amir, you were talking about the twists and turns this case has really seen. Can you talk about the role of Naseemuddin Siddiqui as well in this case? Well, he was the PWD minister in the last Mayawati government when this case was lodged against her. And definitely a close confidant of the BSP chief. He was in part held responsible for the way the project नीचे कर लो भाई, ठीक है, ओके। आज आप सभी जानते हैं कि ताज कॉरिडोर मामले में, जिसमें कि लगभग 7 पिटीशंस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की फाइल की गई थी और ये प्रेयर की गई थी कि इसमें मायावती जी का प्रोसिक्यूशन हो और जो ऑर्डर्स पास किए थे स्पेशल जज ने सीबीआई के, उसको ऑर्डर को क्वैश किया जाए। इस संबंध में हम लोगों ने कोर्ट के सामने ऑब्जेक्शंस फाइल किए थे और कहा था अपने ऑब्जेक्शंस में और आर्गुमेंट्स में भी, रिटन सबमिशंस में भी, कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिट पिटीशंस है, मैलाफाइडी इंटेंशन से फाइल की गई हैं। ऐसे लोगों ने फाइल की है जिन्होंने चुनाव खुद लड़ा था, या तो जो ऐसे लोग हैं जो वकील थे और बाद में स्टैंडिंग काउंसिल बन गए सरकार की तरफ से, ऐसे लोगों ने रिटें फाइल की थी और ये रिटें मेंटेनेबल नहीं है। जो इलेक्शन बीएसपी से हारे थे उन्होंने फाइल किया था। दूसरा हम लोगों ने ऑब्जेक्शन ये भी लिया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ताज कॉरिडोर के ही मामले में सन 2007 में एक नहीं 4 मुकदमों में जो डायरेक्टली फाइल हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसको उन्होंने खारिज कर दिया था। उसमें 3 PILC और एक स्पेशल बेंच के सामने जिसने ताज कॉरिडोर का ओरिजिनल जजमेंट दिया था, उसके सामने एमाइकस क्यूरी ने फाइल किया था, श्री महाजन जी ने, वो भी खारिज हुई थी। उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव 2009 के होने को हुए, उसके जस्ट पहले ये PILs पॉलिटिकल इंटेंशन से फाइल की गई थी, इमेज को मलाइन करने के लिए, इस वजह था। इसके अलावा मेरिट्स में हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था कि जो इस मैटर में सीबीआई ने जो चार्जशीट सो कॉल्ड रिपोर्ट अपनी फाइल की थी 173 में स्पेशल जज के सामने, उसमें उन्होंने खुद बयान किया था, उसके हिसाब से एक भी ऑफेंस मायावती जी के ऊपर नहीं बन के आता था, क्योंकि उसमें ये एडमिट किया गया था कि फाइल कभी भी, इस ताज कॉरिडोर के संबंध की फाइल कभी भी उनके सामने पेश नहीं की गई थी और ना ही रखी गई थी। और उसमें सिग्नेचर जो किए गए थे ऑन बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर, वो भी इस चीज के लिए कि प्रोजेक्ट के बारे में जो चीफ सेक्रेटरी ने और मिशन मैनेजमेंट बोर्ड ने अप्रूवल दिया था, उसके नीचे उन्होंने साइन किया था प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री PL पूनिया जी ने। और उन्होंने जो बयान सीबीआई के सामने दिया था, उसमें इस बात को एडमिट किया था कि ये फाइल कभी भी हमने मुख्यमंत्री के रूप में मायावती जी के सामने नहीं रखी थी। इस पे जब उनसे प्रश्न पूछा गया था कि आपने क्यों नहीं रखी थी, उन्होंने कहा था एक रूटीन मैटर था हमारी नजर में, और ये कोई ऐसा मैटर नहीं था पॉलिसी डिसीजन का कि हम उनके सामने इसको रखना उचित समझते। इन सारी चीजों को देखने के बाद में मैटर जो था सैंक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद गवर्नर के पास गया, और गवर्नर ने अपने ऑर्डर में जो बहुत डिटेल में ऑर्डर दिया था, मेरिट्स में उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मैटर को देखने के बाद कोई भी ऑफेंस चूंकि उनके ऊपर नहीं बनता है, किसी भी प्रकार का नहीं बनता है, और हर तरीके से देखने के बाद पता लग रहा है कि उनके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं बनता है, इसलिए उन्होंने सैंक्शन को रिफ्यूज कर दिया था।
तो रिट पिटिशंस यहाँ फाइल की गई थी, उसमें इस सैंक्शन ऑर्डर को, जो गवर्नर का सैंक्शन ऑर्डर था, उसको कभी चैलेंज नहीं किया गया, वो ऑर्डर फाइनल हो गया था। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो अपना निर्णय दिया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना जो निर्णय दिया है, बहुत ही कंसिडर्ड, बहुत ही डिटेल्ड, लगभग 74 पेज का जजमेंट है, और उसमें उन्होंने सारे नजीरें कंसिडर करते बाद सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट्स और इस विषय पे जितने भी प्रोसिक्यूशन से संबंधित, सैंक्शन से संबंधित जिस तरीके के भी होते हैं, और देखने के बाद उन्होंने मेरिट में इन मुकदमों को खारिज कर दिया, किसी टेक्निकल ग्राउंड में नहीं बल्कि मेरिट में उन्होंने इन सारी रिट पिटिशंस को ये होल्ड किया कि डिवॉइड ऑफ मेरिट्स हैं और ऑल पिटिशंस आर डिसमिस्ड। तो आपका ये मानना है कि जो भी ताज कॉरिडोर बनाने में गलतियां हुई या सैंक्शंस नहीं लिए गए, उसके लिए क्या पीएल पुनिया जिम्मेदार है? हमारा ये कहना कतई नहीं है, क्योंकि हम लोगों का ये कहना है शुरू से कि ताज कॉरिडोर के मामले में किसी भी प्रकार का कोई गलती, इस तरह की कोई सीबीआई भी पॉइंट नहीं कर पाई। उन्होंने खाली कहा कि प्रोसीजरल एरर्स हुए हैं बिटवीन द ऑफिसर्स ने गलतियां की कि उनको इस तरीके से फाइल पेश करना चाहिए था, उन्होंने ये नहीं किया, उसमें ये नोटिस होनी चाहिए थी। उन्होंने ये खुद एडमिट किया है अपने उसमें कि जहां तक 175 करोड़ रुपए की बात बार बार मीडिया करता आ रहा है, ये गवर्नर ने अपने ऑर्डर में लिखा कि 175 करोड़ की बात हम भी सुनते थे, लेकिन जब फाइल देखी और देखा तो सिर्फ 17 करोड़ रुपीस सैंक्शन हुए, जो रिलीज हुए 17 करोड़ के अगेंस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी जो कंस्ट्रक्शन जिसको दिया गया था, उसने 35 करोड़ रुपए खर्चा किए, और इसमें सीबीआई ने ये स्टेटमेंट उच्च न्यायालय में नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय में दिया कि इसमें एक नया पैसा भी हम लोगों की पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमको ये नहीं मिला कि वो मायावती जी के पास गया। तो इसलिए इस प्रोसीजरल एरर पीएल पुनिया साहब ने तो ये अपने स्टेटमेंट में कहा था कि इसमें उनके हिसाब से प्रोसीजरली रिक्वायर्ड नहीं था कि मुख्यमंत्री जी को दिया जाए, इसलिए इसमें ये नहीं है कि उनकी गलती थी या नहीं थी, इस पे मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सीबीआई ने जितना बात अपनी चार्जशीट में गई उसको कोर्ट ने डिस्कस किया, कोर्ट ने उस पर जजमेंट दिया। नहीं, लेकिन जो ताज कॉरिडोर बना जिसके बारे में ये कहा गया, माइक नीचे कर लो यार थोड़ा, जो ताज कॉरिडोर बना जिसमें कहा गया कि इसकी डीपीआर नहीं बनी थी, इसके फाइनेंशियल सैंक्शंस नहीं हुए थे, एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी थी जहां ताज के पीछे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे वहां पे काम शुरू हो गया 2 नवंबर 2000। ये बिल्कुल गलत है। तो इसके वहां पर कोई जिम्मेदार है? मायावती चीफ मिनिस्टर होते हैं। इसमें आप ये बिल्कुल गलत है कि कोई वहां बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हो गया। आप लोगों को शायद ताज कॉरिडोर के बारे में मालूम नहीं, मीडिया ने उस समय जरूर इसको ब्लो अप किया था, अपने अखबारों में ड्राइंग्स दिखा करके कि कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है या क्या बन रहा है। वहां पर ताज कॉरिडोर का मतलब था रास्ता, और जो किला बना था वहां पर किले से लेकर के और ताजमहल तक जमुना किनारे पैदल जाने का रास्ता बन रहा था। उस रास्ते को ही ताज कॉरिडोर कहते हैं, जिसको कि आप लोगों ने बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन की बात कह दी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, सारी चीजें सब पोस्ट डिसीजन भी देख ली गई, उसके बाद भी देखी गई, कहीं पर किसी भी स्टेज पे कोई गलती नहीं पाई गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका काम क्यों रुकवाया? अगर वो सही था तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने खाली ये कहा था कि जो उन्होंने ऑर्डर्स जारी किए थे उनके हिसाब से सैंक्शन लिया जाए तो उनको भी इंटीमेट करके और उनसे इंफॉर्मेशन, उनसे अप्रूवल लेकर के किया जाए। तो ये ड्यूटी थी जो मिशन मैनेजमेंट बोर्ड के लोग थे उनकी। मिशन मैनेजमेंट बोर्ड में जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो हेड होता है और उसमें चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता है। तो इसमें जिन लोगों का रोल था उन्होंने क्या गलती की, प्रोसीजरल क्यों नहीं किया, फॉलो किया, इसका जवाब वो दे सकते हैं। इसका जवाब वो नहीं दे सकता है जिसके सामने फाइल कभी रखी नहीं गई। मैंने अभी कहा, आपने शायद सुना नहीं कि जिसके सामने फाइल रखी नहीं गई तो वो उसमें से कोई इंस्ट्रक्शन क्या। बाकी लोगों का क्या स्टेटस है? जो 11 लोगों के खिलाफ FIR हुई अलग अलग लेवल के, उनका क्या स्टेटस है? नसीमुद्दीन पे मुकदमा चलेगा, बग्गा पे, बाकी लोगों पे क्या होगा? देखिए इस पे जो है, जब बाकी लोगों के बारे में क्या, उनके हम वकील नहीं है और ना ही उनके बारे में हम आपके सामने कोई टिप्पणी कर सकते हैं कि किसने जो उसमें जो अधिकारी थे उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इनके खिलाफ एक्शन, डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स जो ली गई होंगी, और क्या हुआ उसमें मैं नहीं कह सकता। लेकिन जहां तक बग्गा साहब है या पीएल पुनिया साहब है, जिनके उसमें सिग्नेचर थे, चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से बग्गा साहब के सिग्नेचर थे हर पेज में, और उसमें पीएल पुनिया साहब ने उसके नीचे अपने इनिशियल किए थे।
तो इन लोगों को जो चार्जशीट बनाई गई थी उसमें इनको मुलजिम नहीं बनाया गया। यही तो आर्ग्यू किया गया कि 120B की बात होती है तो 120B में एक से ज्यादा आदमी होने चाहिए, एक से ज्यादा माइंड होने चाहिए, और जब आप एक को खाली बना रहे हैं, नसीमुद्दीन जी के संबंध में भी क्वैश हो गया, उसके बारे में भी जो है रिट पिटीशन डिसमिस हो गई है, और कोई प्रोसिक्यूशन की जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि गवर्नर साहब ने नसीमुद्दीन जी के खिलाफ भी जो सैंक्शन की बात थी उन्हें रिफ्यूज कर दिया था, आज उसको अपहोल्ड कर दिया गया। तो इसलिए नसीमुद्दीन जी के मामले में वही चीज है जो कि Taj case was a history. It has been created only politically. It was opened up. I have already said a case which was closed not once, not twice, but 4 times by the Honorable Supreme Court in similar writ petitions, identical writ petitions which have been dismissed today. These were filed in 2009 and 2010 and 2011. Few of them were filed in 2011, and identical writ petitions, 7 PILs we filed misuse and abuse, total abuse of the PILs, which has been done in this particular case. But so far as Taj Corridor case was concerned, I am again repeating it, that the entire issue after consideration was placed after the special judge has passed his order. The governor had refused the sanction. It was placed before the Supreme Court and before the same special bench of 3 honorable judges of Supreme Court, which was monitoring Taj Corridor, and the same bench had refused and declined. That judgment is reported in 2007 itself, and in spite of, and thereafter still 3 PILs were filed before the identical PILs by different persons. Now, if there are 120 crore people living in this country, every individual says, I have an individual right. So 120 crore PILs can be filed in this manner. In spite of the fact that Supreme Court had put an end to it. It was already on history in 2007 when the matters were disposed of by the Honorable Supreme Court. But only for the purposes, as I said, I am repeating, for political motivation, for maligning the image of the national leader of the president of a political party. The entire issue was raised and it was followed till today, and for which there will be no compensation, I am sure. The judgment, the Honorable Supreme Court, in the judgment, the Honorable High Court today has discussed every issue which was raised by the petitioners once again, and on merit, on the question whether the sanction was required or not in this case, they have said yes, it was mandatory, it was required, a sanction. Then the governor's order, which has been upheld, the refusing the sanction, all other issues they have considered in the judgment and are given the judgment on merit. It is not on any technical ground, on the ground that the Honorable Supreme Court had dismissed earlier, therefore we are not entering into the merits. They have entered into the merits. They have looked into the merits of the matter, and thereafter they have said that all the petitions have no force to stand, and therefore they are being dismissed, devoid of merits and dismissed. You are seeing it as a political relief also. Can we expect some new political moves on part of BFC, because now you are like released from this? See, politically, you will get the answer politically at political briefing. But so far this is concerned, I can only say that this was a history in 2007. It was only a method which was used by the so-called public interest litigants who misused the forum of the court, and they took 4 years of this valuable time of this court for these dead issues which were already dead in 2007. देखिए, अभी जजमेंट आपको, जैसा मैंने कहा कि 74 पन्ने का जजमेंट है, मैंने तो आप लोगों को इसीलिए थोड़ी देर रोके रखा कि जब हम किसी जजमेंट के बारे में आके बयान देते हैं, बात करते हैं, तो we have to be very discreet. We have to see that we speak only what we have seen. And now the judgment will be loaded in certain time, and we'll get the entire judgment, and we'll come to know what they are. एक चीज समझना चाहते हैं कि जो भी ताज कॉरिडोर में हुआ, वो सब मायावती जी की जानकारी के बिना अधिकारियों ने किया। जी हाँ, देखिए, जितना भी ताज कॉरिडोर में, आपको मैं ये रिपीट करने लगा रहा हूँ कि ताज कॉरिडोर में जो भी काम हुआ, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो,
चाहे वो सैंक्शन का काम हो, चाहे वो प्रोजेक्ट सैंक्शन का काम हो। तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि इस तरीके से तो अगर मुख्यमंत्री का कोई रोल होता तो सबसे पहले एक्यूज होते श्री राजनाथ सिंह जी, क्योंकि सन जनवरी 2002 में मिशन मैनेजमेंट बोर्ड ने इसको सैंक्शन किया था, इस प्रोजेक्ट को, और तब सरकार बीएसपी की नहीं थी, तब मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह जी और बीजेपी की गवर्नमेंट थी। और उसके बाद ये प्रोजेक्ट चला। उसके बाद मिशन मैनेजमेंट बोर्ड, जैसा कि मैंने कहा, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ऑफिशियल्स और कमिश्नर ऑफ द आगरा डिवीजन एंड हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी उसका हेड होता है मिशन मैनेजमेंट बोर्ड, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं होता। सारे डिसीजन, और ये जो मिशन मैनेजमेंट बोर्ड बनाया है, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए, उसकी बेसिस में काफी वर्षों पहले एक नोटिफिकेशन इशू हुआ, उसमें ये बनाया गया। उसमें सारा रोल अधिकारियों का है। मुख्यमंत्री के रूप में तो फाइल सबमिट की गई जब मिशन मैनेजमेंट बोर्ड ने ये डिसीजन लिया कि इसके प्रोजेक्ट के लिए फंड्स रिलीज किए जाएं, और रिलीज करके इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया और आगे बढ़ा जाए। तो उस फाइल को जब भेजा गया मुख्यमंत्री के सचिवालय में, जहां पर भेजने की आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि उनका वो महकमा नहीं था, और ये सिर्फ उनके पास ही मिशन मैनेजमेंट बोर्ड का ही डिसीजन था और सुप्रीम कोर्ट को उनको इन्फॉर्म करना था। पर उसमें श्री पीएल पुनिया जी, उस समय तत्कालीन जो प्रमुख सचिव थे मुख्यमंत्री, उन्होंने उसके नीचे अपने दस्तखत कर दिए और फाइल वापस ली। तो इसमें इसी का जो रोल है, जहां तक मुख्यमंत्री जी के रूप में रोल है मायावती जी का, जैसा कि मैंने कहा कि उनका कोई इस मामले में रोल नहीं था, ना ही उनको ताज कॉरिडोर के बारे में कि ये ताज कॉरिडोर क्या बन रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट है, पूरी फाइल पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक उनके सामने नहीं रखी गई। सिर्फ एक चिट्ठी उनके द्वारा जो एक बात गई थी, वो भी ये गई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सारे प्रोजेक्ट को देख ले, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ कि अफसरों ने उनको नहीं बताया? उनकी जरूरत ही नहीं, यही मैं कह रहा हूँ, अफसर बताएंगे, ये हम लोग नहीं बता सकते। कंसर्न ऑफिसर्स को अगर वो चार्जशीट करते तो वो बता, पीएल पुनिया साहब बता सकते हैं और लोग बता सकते हैं, लेकिन इसमें जो है जो भी है ऑफिसर्स बता सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ इस समय इसीलिए कि पीएल पुनिया साहब के ऊपर मैं कोई आरोप ये लगाऊं कि उन्होंने भी फाइल में जो उनके सामने आई, उन्होंने फाइल वापस दी। ये उन्होंने अपने विवेक से कहा, अपने बयान में कहा सीबीआई के सामने। जो गवर्नर का ऑर्डर आपके सामने है, आप लोगों ने उसको देख ही लिया होगा, रिकॉर्ड में है ऑर्डर वो गवर्नर का, कि जिसमें उन्होंने कहा कि उनका बयान उन्होंने रिकॉर्ड किया, उसमें रिप्रोड्यूस किया और कहा कि उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने ये फाइल क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी को दिखाई थी, उन्होंने कहा कि मेरे विवेक में ये मामला पॉलिसी डिसीजन का नहीं था, इसलिए मैंने उनके सामने रखी है। तो इसलिए आज आप लोग, अच्छा है आपने प्रश्न किया, इससे कि कम से कम लोगों को जो भ्रमित किया जा रहा है, ताज कॉरिडोर स्कैम, ताज कॉरिडोर 175 करोड़, इसमें 17 करोड़ रिलीज हुए, 35 करोड़ खर्चा हुए, और उसको लेकर के जो ब्लो अप होता है हर जगह, चाहे वो मीडिया पैनल्स में हो, चाहे मीडिया चैनल्स में हो, चाहे अखबारों में हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो बैठ के बोलती है। तो इसलिए ये मैं आपके सामने, इसीलिए मैंने दोबारा रिपीट करते हुए स्पष्ट कर दिया कि जहां तक मायावती जी का रोल था, इसमें कभी भी नहीं रहा, उनका इस मामले से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं रहा, उनके सामने मसला ही नहीं आया। All right, there you have it, Satish Chand Mishra, Mayawati's lawyer, also a BSP member, talking about the case, saying that the High Court, Allahabad High Court, felt that the writ was not maintainable, therefore dismissing all the PILs that were filed in this Taj Corridor case against Mayawati and her aide Naseemuddin Siddiqui. He also mentioned that the court went into the merit of the case and not just looked at the technicality of the case. Let's go across to our Supreme Court correspondent Kunal Shankar. Also joining us is our associate editor Atish Srivastav. Let me first put the question to Kunal. Kunal, this matter was in the Supreme Court. There was a committee that looked into the environmental clearances. What was the angle that the case actually took the shape in the Supreme Court? Well, Maha, the main case as far as all these PILs, there were more than a handful of PILs that were filed following the Supreme Court order in this matter, which allowed for the CBI to register an FIR and conduct an investigation into as to whether there was arbitrary allotment or any sort of siphoning of funds. Kunal, I'll have to hold you on for a bit over there. The prosecution lawyer speaking. Let's listen in. कमेंट नहीं कर सकते, सही है या गलत है, अभी जाएंगे क्योंकि न्यायालय का मामला है और सुप्रीम कोर्ट के कहने
के आदेश के बाद यह मुकदमा PI सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जाइए हाई कोर्ट में PI दाखिल करिए इन लोगों के खिलाफ। तब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद हम लोग आके यहाँ हाई कोर्ट में PI दाखिल किए थे। तो निश्चित रूप से आज जो फैसला हुआ है इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यह बिल्कुल बहुत बड़े घोटाले का मामला है। टेक्निकल ग्राउंड पर श्री मायावती और नसरुद्दीन सिद्दीकी को गवर्नर ने बचाया, उन्होंने सैंक्शन नहीं दिया। सिर्फ इतने ही मुद्दे पर किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ इस समय देश में मुकदमा नहीं चलेगा, ये संभव नहीं है। अगर फिर तो ये न्यायालय की कोई भ्रष्टाचार करे और सरकारी अधिकारियों को, चीफ मिनिस्टर को या गवर्नर को डाले और भ्रष्टाचार से मुक्त रहे, ये देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुकदमा आखिर में न्यायालय ही तय करेगा कि उसने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया। हम इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ भी जाएंगे। यह एक तरह से लग रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि इस समय हम न्याय और नैतिकता दोनों की हार हुई है और अनैतिक लोग ये जीत हासिल किए हैं। इस मामले में आपको बताना चाहता हूँ, शायद मीडिया को पता भी होगा कि किस तरह मायावती ने वादियों जो इसके पिटिशनर थे उनको खरीदा, उनसे खरीद करके मुकदमा वापस किया। आप लोग मीडिया को ये भी जानते होंगे कि इस मामले में जो एक पिटिशनर को मदद करा था अवस्थी, उसको जेल भेजा गया, 6 महीने जेल में रहा, उसके खिलाफ तमाम कार्रवाई की गई। यहाँ तक कि वकीलों को भी इसमें खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन नैतिकता के बल पर वकील खड़े रहे और आज यहाँ तक पहुंचा है। उसी नैतिकता के बल पर हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे और हम लोग यही कोशिश है कि किसी भ्रष्टाचारी को इस तरह टेक्निकल ग्राउंड पर छूटने का अधिकार नहीं है। उसे जाना पड़ेगा न्यायालय में। ये अलग बात है कि न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करे, वहाँ छूट जाए तो कोई आपत्ति नहीं, सबको अधिकार है। तो न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर न्यायालय में मामला चले ना, ये तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की व्यवस्था में ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल हम लोग इसका हर तरह से इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि इन ग्राउंड पे आपकी पेटिशन को रिजेक्ट किया गया? सिर्फ सैंक्शन के ग्राउंड पर, और ये कहना कि मेरिट पे तो कोई बहस ही नहीं हुई और न मेरिट पर यहाँ चला। मेरिट पर तो देखेगा न्यायालय, वो न्यायालय जो CBI का स्पेशल कोर्ट देखेगा। हाई कोर्ट ने मेरिट पर थोड़ी देखा। हाई कोर्ट ने देखा कि जो कॉग्निजेंस रिफ्यूज किया गया है, ये कॉग्निजेंस रिफ्यूज करने के बाद यहाँ मुकदमा नहीं चल सकता। तो इसका हम एक बेसिक सवाल उठाते हैं कि क्या गवर्नर को ये अधिकार है कि न्याय व्यवस्था को वो हट कर रोक दे? इस पर हम लोग जाएंगे। सर एक चीज, ये जो क्या जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, क्या ऐसी कोई पहले की नजर है कि पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है? जैसे में बादल के केस में कहा गया कि भ्रष्टाचार के माध्यम से, आप ये भी बता देंगे थ्रू आउट इसमें CBI ने प्रोसिक्यूशन को स्कटल करने की कोशिश की। पहले CBI ने क्या किया कि CBI ने जब इन्वेस्टिगेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBI इसमें इन्वेस्टिगेशन करे, तो CBI को जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो CBI का SP था उसने एविडेंस कलेक्ट किया। उसके बाद वहां के दबाव पर डाल के उसने SP ने भेज दिया डायरेक्टर को। सुप्रीम कोर्ट का भाई डायरेक्टर से कहा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस पर तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं, डायरेक्टर को ओपिनियन को नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाके चार्ज को सबमिट किया कोर्ट में, तो वहां स्कटल किया। फिर यहाँ आके कह दिया तो CBI ने कि इस मामले में सैंक्शन की जरूरत है और सैंक्शन जाके रिफ्यूज कर दिया, जबकि इस मामले में सैंक्शन की जरूरत नहीं थी। तो वहां भी CBI ने स्कटल कर दिया। और आप सभी जानते हैं कि CBI इस देश में किस तरह से काम कर रही है और आज वही स्थिति, राजनीतिक स्थिति जो तब थी वही स्थिति आज भी पैदा हुई है। उस समय राष्ट्रपति के शासन में मायावती की जरूरत थी केंद्र सरकार को, और आज उनको गवर्नमेंट चलाने के लिए केंद्र सरकार की जरूरत है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से CBI का इस्तेमाल वो हो रहा है इस मामले में। तो एक बहुत गंभीर मामला है और किसी भी भ्रष्टाचारी को इधर अगर छुआ गया तो जनता के अंदर क्या मैसेज है? तो हम यही कह सकें कि हम यही कहेंगे कि न्याय मायावती सक्सीड।